Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So today we will start with IT security IBF certification exam. This is a unit 4 module A, security governance. So in this chapter what we will cover what is security governance, security governance architecture, key responsibility area in respect with security governance, security governance in public sector undertaking, security governance in banks, monitoring security governance, and the last one, security governance from the psychological aspect of crime. We will discuss the fraud triangle. Okay, I have not written here, so let's start. So what is security governance? Security governance क्या है? IT security governance is the system by which an organization directs and controls IT security. Security governance is about decision making where management making and implementing a specific decision. देखिए, सिक्योरिटी गवर्नेंस का क्या मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आईटी सिक्योरिटी है या आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं या आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, ठीक है, तो उस डिसीजन को जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि जो आईटी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है, या कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इंश्योर करें, ठीक है, तो इसको एज अ होल जो है हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गवर्नेंस. सो सिक्योरिटी गवर्नेंस इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन वेयर मैनेजमेंट मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए स्पेसिफिक डिसीजन टू इंश्योर आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स. ठीक है, तो क्या हो गया ये कि सिक्योरिटी गवर्नेंस is the system by which an organization directs and control IT security. Security governance is about decision making where management making and implementing specific decisions. और ये specific decisions जो होता है वो क्या होता है, जिससे IT security को जो है वो इंश्योर किया जाए. ठीक है, तो दिस इज सिक्योरिटी गवर्नेंस. Now I have also written security governance involves the top management by setting responsibilities, putting in place practices with the goal of providing a strategic direction, ensuring that objectives are achieved, risks are managed, and resources are used optimally. Security governance involves how the data and information are handled in the organization, how the application handles how the application handles security, the network, other layer handling the data and information. मतलब क्या है, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे what I have written here. Security governance involves the top management by setting responsibility and putting in place practices with the goal providing a strategic decision, ensuring that objectives are achieved, risks are managed and resources are used optimally. ठीक है, इसमें क्या करता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक गोल को सेट करता है, ठीक है, और गोल को सेट जो करता है, सो हाउ दे सेट द गोल, तो बाय प्रोवाइडिंग ए स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड इंश्योरिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होता है, रिस्क को मैनेज किया जाता है और जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमली यूज्ड किया जाता है. तो यदि हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सिक्योरिटी गवर्नेंस, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स आईटी सिक्योरिटी. It involves the top management by setting responsibility and putting in place practices with the goal of providing a strategic direction, ensuring that objectives are achieved, risks are managed and resources are used optimally. मतलब इसमें क्या होता है कि इन IT governance और security governance it involves everything from process to people, implementation, objectives, goals, everything. We achieve everything.
in this in security governance. ठीक है, so now I assume कि you have understood security governance. Next, security governance architecture. So this is first of all, this is not the typical architecture of an organization. This is something which involves in security governance. ठीक है, so while managing security governance, these are the things which comes into picture. Okay, so what are the things? The first one is people and processes. Okay, data and information access, application, network architecture, and physical infrastructure. So these are the things which comes into picture while we think about security governance, while we implement security governance. सो सिक्योरिटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर में क्या सब आ जाएगा? या सिक्योरिटी गवर्नेंस इंक्लूड व्हाट आई शुड हैव रिटन, सिक्योरिटी गवर्नेंस नॉट आर्किटेक्चर, इट शुड सिक्योरिटी गवर्नेंस इंक्लूड्स people and processes, data and information access, application, network architecture, and physical infrastructure. Please remember this. Okay, next, who will bear the responsibility in security governance? So it is not about that if something happens then the said people will be responsible. This is all about implementing security governance in an organization. So who is responsible for implementing security governance in an organization? So the person is chief information officer और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर. ठीक है, इन सिक्योरिटी गवर्नेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर्स बाय चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु आल्सो एक्ट एज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर. सो हु बियर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर implementation of security governance in an organization? So chief information officer or chief security officer. Okay, so now KRA in security governance. So what is KRA in security governance में जो है वो KRA का क्या रोल है? चलिए पहले इसको समझते हैं. देखिए KRA क्या है कि की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया. हम सभी बैंक में काम करते हैं, तो बैंक में क्या होता है कि हम सभी को जो है वो काम मिला है जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ. ठीक है, तो KRA हैज बीन डिफाइंड फॉर ऑल द पीपल इन दैट डिपार्टमेंट. ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब KRA डिफाइन करते हैं तो KRA मतलब क्या, एक वर्क असाइन करते हैं. ठीक है, कि आप ये वर्क करेंगे, आप ये वर्क करेंगे, आप ये वर्क करेंगे. तो सिक्योरिटी गवर्नेंस यदि हमको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इफेक्टिवली यदि उसको हमें करना है, तो हम जब KRA डिफाइन करते हैं फॉर द एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो वी कीप दिस इन माइंड कि हाउ वी कैन इफेक्टिवली achieve security governance while allotting KRA for our employee. ठीक है, तो चलिए इसको एक बार डिस्कस करते हैं. तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल वंस KRA इज फाइनलाइज्ड. Based on this, the security initiatives will be framed and focus area defined. ठीक है, तो एक बार जब हम मान लीजिए KRA किसी को असाइन कर देते हैं, तो फिर उसके अराउंड में जो है हम देखेंगे, ठीक है, कि सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो है वो क्या हो सकता है, हमारा फोकस जो है वो क्या होगा. जब तक KRA यदि नहीं किसी को डिफाइन होगा तो फिर हम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते. ठीक है, तो for the successful implementation of security and effective security governance, organization should assign the tasks to each employee, and based on the task assigned to them, organization can make their responsibilities clear and unambiguous. बिल्कुल सही लिखा है. एक बार मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 10 काम है. ठीक है, तो अभी यदि KRA नहीं है ना, तो फिर कोई भी आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम नहीं करेगा, चाहे सिस्टम कुछ हो नहीं हो, क्योंकि आप उसे पता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन तो रेस्पॉन्सिबल होंगे नहीं उसके लिए. तो वंस KRA इज फाइनलाइज्ड,
टास्क असाइन कर देते हैं, तो यदि उस टास्क में कुछ इशू आता है तो फिर हम उस पर्सन को लायबल बनाएंगे, ठीक है ना, वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बार टास्क फाइनलाइज हो गया कि कौन किस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो कल के दिन में यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो वो पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। द सेड पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क, ठीक है। तो हमारा सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो अचीव करने के लिए एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी या अनएम्बिग्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क एरिया, टास्क एरिया जो है वो डिफाइन होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन शुड असाइन द टास्क to each employees, and based on the task assigned to them, organization can make their responsibilities clear and unambiguous. Next, security governance in public sector undertaking. So before proceeding further, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए एक बार रिलेट करते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है। सिक्योरिटी गवर्नेंस को हमने डिस्कस किया। देन द कंपोनेंट इन सिक्योरिटी गवर्नेंस हमने पढ़ा अभी, पीपल एंड प्रोसेसेस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस, एप्लीकेशन, नेटवर्क आर्किटेक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, ठीक है, कि हाउ KRA contributes in achieving security governance, yeah, what is the role of KRA in security governance. Now I am discussing security governance in public sector bank. Then we will discuss public sector undertaking. Then we will discuss security governance in banks. Then we will discuss monitoring. Then we will discuss the fraud triangle. Okay, so now we are discussing security governance in public sector undertaking. देखिए एक यदि हम लेमन टर्म में समझें तो देखिए पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो हमें किस बात पे जो है वो ध्यान देना है, या वेयर वी नीड टू पे ऑल आवर अटेंशन, तो वी हैव टू पे ऑल आवर अटेंशन टुवर्ड्स देयर डेटा, ठीक है। जब भी हम सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात करेंगे तो हम डेटा इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और हम क्या मेजर्स लेंगे, ठीक है, दिस दैट। तो अभी हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है कि उनका जो है वो पेपरलेस काम होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनके पास डेटा होगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में डेटा होने के कारण जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सारा काम ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में है। तो हर जगह जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस को जो है वो अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसे डिस्कस करते हैं। सो नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। नाउ लेट्स रीड। Security governance is very important in PSU as the type of data handled, the criticality of information dealt with, etc. ठीक है, कि टाइप डेटा जो है डेटा टाइप क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होता है। पहले है कि सिक्योरिटी गवर्नेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि जिस टाइप का डेटा ये लोग हैंडल करते हैं और जो इंफॉर्मेशन के साथ ये लोग डील करते हैं वो काफ़ी क्या होता है, क्रिटिकल होता है। नाउ सी, most of the things are done electronically and many government levies are paid electronically. Security governance assumes very huge importance. Similarly, records as maintained by SEBI, Security and Exchange Board of India, may also be kept electronically. In all such cases, it becomes a responsibility on the part of corporate organizations to ensure that security governance initiatives are in place and adequate security is provided to record stored electronically. मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो है कि what kind of data or information they handle, it is very critical, very significant to implement security governance in public sector bank, ठीक है, यही लिखा हुआ है। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, to ensure
that security governance initiatives are in place and adequate security provided to records stored electronically. इसमें क्या कहा गया है कि इसीलिए हम यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ से हम एक बार देखते हैं, इट बिकम्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर दैट सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आर इन प्लेस. सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे, ठीक है, सही से काम कर रहा है. एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू रिकॉर्ड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. तो देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल ये चैप्टर है, ठीक है. बस इसे एक बार समझ लेना है. यदि कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो आपको बस सोच के जो है वो आंसर जवाब देना है कि सिक्योरिटी गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यही है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा उनके पास ज़्यादा होता है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मतलब देखा जाए तो डिजिटल वे में ही वो लोग करते हैं, खास करके जो डेटा जो उनका है. दूसरी बात क्या है कि दे ऑल्सो डील्स इन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्योरिटी गवर्नेंस को जो है वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए. और सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आर इन प्लेस एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू रिकॉर्ड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. जो भी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, ठीक है, उसको जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्योरिटी गवर्नेंस इन बैंक, ठीक है. सिक्योरिटी गवर्नमेंट बैंक में भी यही है. बैंक में चूंकि फिनेंशियल डेटा होता है हमारा, तो हमारा जो है वो और रोल बढ़ जाता है, ठीक है, और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पर इसको सिक्योरिटी गवर्नेंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है. देखते हैं. एज मोर एंड मोर बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर गोइंग पेपरलेस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड with only electronic records or evidences, it has become increasingly essential on the part of bank to have proper security governance initiatives in place. बिल्कुल सही लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंक का जो डेटा है, ठीक है, और हमारा जो ट्रांजेक्शन है अब तो है नहीं, अब पेपरलेस तो है नहीं. सो बैंक ट्रांजेक्शन्स आर नाउ गोइंग पेपरलेस, डिजिटल हो रहा है. अल्टरनेटिव चैनल जो भी है, मान लीजिए कि ATM, नेफ्ट, RTGS, UPI, IMPS, ठीक है, हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है. और जब IT एक्ट 2000 आया था तो IT एक्ट 2000 में क्या कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है विच कैन ऑल्सो बी सर्व्ड एज और रिकॉर्डेड एज एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंसेस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये बहुत एसेंशियल हो जाता है टू हैव प्रॉपर सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन प्लेस, ठीक है. इसका तो यही है. नेक्स्ट क्या है, टू बी ऑन द पार विद पीयर्स ऑल बैंक्स हैव टू पुट इन प्लेस सिक्योरिटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर इन प्लेस एज पार्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी. बिल्कुल कि अब जैसे प्राइवेट बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इवन SBI, ठीक है. तो यहाँ पर जो है वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है. तो और सारे बैंक जो है वो दे वांट बेस्ट सिक्योरिटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर इन देयर प्लेस, ठीक है, कि सब चाहते हैं कि उनके बैंक में जो है वो सबसे अच्छा सिक्योरिटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर हो, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. Next, irrespective of whether the bank is on an in-house software development or outsourced software, e-governance has to be taken seriously from a regulatory perspective, from a competitive edge point of view, and also to ensure better organization control including MIS generation. देखिए सबसे पहले हमने इसमें अभी क्या पढ़ा था. देखिए जब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस इन बैंक्स के बारे में, तो सबसे पहले क्या पढ़ा कि पेपरलेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पार्ट में देखा कि पीयर प्रेशर के कारण वो जो है वो बेस्ट सिक्योरिटी गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने बैंक में. थर्ड है क्या, थर्ड यहाँ पे है रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव. रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव में क्या है कि मान लीजिए जैसे रेगुलेटर कौन है बैंक का, RBI है. कि RBI यदि बोलता है कि आपको ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ये IT इनिशिएटिव आपको लेना है, ठीक है, तो हमें जो है वो करना पड़ेगा. तो ये जो सिक्योरिटी गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करने का रीज़न है बैंक्स में, तो एक मेन रीज़न रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है.
कि टाइम टू टाइम जो है हमारा जो रेगुलेटर है वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आधार वॉल्ट हमने अभी इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो देखा जाए तो आधार वॉल्ट इम्प्लीमेंट हुआ बहुत, मतलब आधार वॉल्ट का भी काफ़ी टाइम हो गया अभी देखा जाए तो वो भी क्या है, तो एक तरीके से सिक्योरिटी गवर्नेंस का ही जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी गवर्नेंस इन बैंक्स ऑल्सो डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंड ऑन द लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन। बिल्कुल पेपरलेस हो गया तो कंप्यूटराइजेशन तो हुआ ही है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन in banks, it should be the constant endeavor of banks to strike a perfect balance between what is very strict and secure and what is too loose and liberal. If a bank is weak in security governance, some customer may prefer the bank on the superficial relief and happiness. मैं बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए, एक बैंक में जो है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ना तो हमारा रूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो और ना बहुत लूज हो। क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि हम ना कोई सर्विस लाते हैं, ठीक है, सर्विस लाते हैं। रुकिए, पहले एक बार ना आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि इफ द बैंक इज वीक इन सिक्योरिटी गवर्नेंस, सम कस्टमर मे प्रेफर द बैंक on the superficial relief and happiness that the bank asks less question and gives less hassle for e-transaction. But on the other hand, when the customer loses money as a result of any vulnerability in the bank system, the same customer will naturally access the बैंक्स ऑफ बीइंग टू लिबरल विथ हाईली इनसिक्योर प्रैक्टिसेस। मतलब कि मान लीजिए यदि हम कस्टमर को जो है वो थोड़ा ये देना चाह रहे हैं, लिबर्टी देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है उसे हम अपने सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा सा इजी रख सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को लगेगा कि यहाँ पर जो है वो, जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग के लिए है, तो क्या होता है कि उस बैंक का कोई कस्टमर हो जो इंट्रोडक्शन करे आपके लिए, ठीक है, तो आपका अकाउंट तभी ओपन होगा। मान लीजिए यदि ये नॉर्म्स हटा देते हैं तो सम कस्टमर्स विल बी हैप्पी, कुछ कस्टमर जो होगा खुश होगा कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अकाउंट ओपनिंग में, तो वो ओपन करेंगे। अब ट्रांजैक्शन में ही है, यदि हमारे पास बहुत सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे चेक्स नहीं हैं, ठीक है, तो कस्टमर विल बी हैप्पी, ठीक है, अरे यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम आराम से सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उनको कोई हैसल नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखिए कि यही कस्टमर यदि हमारे उसका जो है कोई पैसा जो है वो डेबिट हो जाए, ठीक है, और वो हमारे बैंक के मतलब सिस्टम के इशू से हो, सिस्टम वल्नरेबिलिटी के कारण हो, तो वही कस्टमर फिर क्या बोलेगा कि ये बैंक जो है, ठीक है, ये बैंक जो है वो क्या है कि इसका जो है वो सिस्टम सही नहीं है, इतना सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा कि इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका सिस्टम जो है वो पूरा सिक्योर भी होना चाहिए और इजी टू यूज़ भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है वो सिक्योरिटी गवर्नेंस का ही पार्ट है। तो बैंक में हमने क्या क्या देखा, पहले देखा कि हम लोग जो है वो फाइनेंशियल डेटा हैंडल करते हैं, यहाँ पे था ना टाइप ऑफ, यहाँ पे ये था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक आईटी एक्ट आने के बाद हम लोग जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जो है वो एविडेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर उसको रखना जो है वो हम इम्पोर्टेंट हो गया है। सेकेंड है क्या, पीयर प्रेशर में भी सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो बेस्ट मॉडल वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है बैंकों में। दूसरा, उसके बाद हमने पढ़ा कि रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव के कारण भी जो है वो सिक्योरिटी गवर्नेंस को जो है वो इंश्योर किया जा रहा है बैंक में। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा क्या कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ईजी टू यूज़ होना चाहिए और साथ ही साथ सिक्योर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे एक बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि मॉनिटरिंग इन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है, मॉनिटरिंग इन सिक्योरिटी गवर्नेंस। देखिए, सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मॉनिटरिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर ऑन इम्प्लीमेंटेशन, एडुकेसी ऑफ पॉलिसीज,
compliances of policies etc. सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी सर्विस को रोल आउट करते हो, ठीक है, कोई भी सर्विस रोल आउट करो, कोई भी काम करते हो, या डे टू डे वर्क हो या वंस इन अ वाइल हो, तो क्या है कि मॉनिटरिंग तो चाहिए होता है। मॉनिटरिंग आप करेंगे ना, ऐसे तो नहीं कि छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कब सक्सेसफुल होगा कि जो भी आपने उसके लिए जो भी मेजर्स, जो भी कंट्रोल पैरामीटर जो भी है आपके लिए, तो टाइम टू टाइम जो है वो आप उसको मॉनिटर करते रहोगे, है ना, तभी वो सक्सेस होगा। तो यहाँ पर भी है सक्सेस ऑफ सिक्योर गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मॉनिटरिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर ऑन इम्प्लीमेंटेशन, एडिक्वेसी ऑफ पॉलिसीज, कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज एक्सेट्रा। क्या क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना होगा टाइम टू टाइम, एडिक्वेसी ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, टाइम के साथ उसे हम चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पॉलिसी के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सच मॉनिटरिंग इनिशिएटिव शुड इंक्लूड द रीजन फॉर नॉन कॉम्प्लायंस इट एनी, ठीक है। तो मॉनिटरिंग में अब हम जो है इसको इंक्लूड करेंगे, यदि कोई भी चीज़ कंप्लाई नहीं हो रहा है, हमारा पॉलिसी कंप्लाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, यदि कंप्लाई नहीं हो रहा है तो कंप्लाई करेंगे। इमीडिएट करेक्टिव एक्शन वेन एवर नेसेसरी एंड फिजिबल, एंड प्रिवेंटिव एक्शन वेन एवर पॉसिबल टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। मतलब क्या है कि हमारा एक तो जो है वो नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रिवेंटिव रहे हम लोग, ठीक है, और करेक्टिव एक्शन को जो है हम लोग इंश्योर करेंगे जब भी नेसेसरी हो, फिजिबल हो। सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसिडेंट, security incident management, classification of incidents and their follow up activities come under monitoring and are integral part of security governance। मतलब ये कि security incident management, यदि कुछ incident होता है security से related, classification of incidents, follow up activities, तो ये सब जो monitoring में होता है, these are the integral part of security governance also, ठीक है। तो मॉनिटरिंग समझ लिया हमने। मॉनिटरिंग मतलब क्या है कि हमारा सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो कितना सक्सेस होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि हम कितने अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं। जब हम मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो मॉनिटरिंग में क्या क्या आएगा, आपका जो है वो पॉलिसी है सही है कि नहीं है, रिलीवेंट है कि नहीं है, ठीक है, एडिक्वेट या रिलीवेंट जो भी आप समझे। दूसरा कि हम पॉलिसी से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको यदि लगता है कि चेंज करना है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। यदि हमारा पॉलिसी से कंप्लाई नहीं हो रहा है तो देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसको इंश्योर करेंगे कि वो कंप्लाई हो। उसके बाद क्या है कि हम सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट को इंश्योर करेंगे। यदि कुछ इंसिडेंट होता है तो वी विल क्लासीफाई दोज इंसिडेंट्स, फॉलो अप एक्टिविटीज़। तो ये सब जो है दीज आर द प्रोसेसेस कम अंडर मॉनिटरिंग, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है। तो दिस इज मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट केस में से क्वेश्चन ना आया हुआ है और पूछता भी है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। और ये जो है वो IBF का जो बुक है ना अपना IT सिक्योरिटी का, ठीक है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम। देखिए एनालिसिस ऑफ फ्रॉड, analysis of fraud has always proved that there are three constituent factors to a fraud or a crime, sometimes also known as fraud triangle। मतलब जब भी कोई फ्रॉडस्टर फ्रॉड कमिट करता है, ठीक है, तो तीन फैक्टर हमेशा जो है वो होता है। एक होता है नीड, देन होता है अपॉर्चुनिटी, और तीसरा होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो नीड का क्या मतलब है। जब फ्रॉडस्टर जो है वो फ्रॉड कमिट करता है तो यहाँ पर नीड का क्या मतलब है। देखिए नीड मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना कि उसे और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, हमारा नीड और ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होता। तो फ्रॉडस्टर के साथ भी ऐसा, एक बार कभी कुछ कर लिया होगा, सक्सेस हो गया होगा, तो ही नीड्स मोर मनी। तो एसेट और मनी, है ना, एसेट और मनी और प्रॉपर्टी और डिज़ायर और ग्रीड, नीड तो यही है, ठीक है, कि उसको पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, या उसको ग्रीड है, लालच हो गया है,
ठीक है। तो एक तो नीड रहता है, फ्रॉडस्टर जब भी फ्रॉड कमिट करता है तो एक उसका जो साइकोलॉजिकल आप स्टेट देखेंगे तो नीड उसमें जरूर रहता है, एक तो नीड हो गया। सेकेंड क्या है, अपॉर्चुनिटी। मान के चलिए कि जब एक चोर एक घर में चोरी करता है, ठीक है, तो यदि आपका मतलब जो घर बहुत सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल आपने नए इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो शायद चोरी करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन यदि उसको पता है कि हम इस घर में चोरी कर सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, आराम से कर लेंगे, तो उसको अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखता है। अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो ही विल एक्सप्लॉइट दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। पहला तो नीड है, पहले लगेगा कि चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब दूसरा, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ, अब यदि हम इसको आईटी के इसमें देखें तो अपॉर्चुनिटी लेफ्ट बिहाइंड बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और एसेट और व्हाट इज कॉल्ड द अनमिटिगेटेड रिस्क और द वनरेबिलिटी इन द सिस्टम। यदि वो सिस्टम को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, को थेफ्ट करेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब ये हो गया कि यदि जो सिस्टम ऑनर है, जो जो एसेट ऑनर है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि मेरा इन्फॉर्मेशन थेफ्ट होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन होता है मेरे इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, तो आई एम द कल्प्रिट, मेरा इशू है वो, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल स्टेट में अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है, बट आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग देम दैट अपॉर्चुनिटी टू कम एंड एक्सप्लॉइट माई वीकनेस, ठीक है, वल्नरेबिलिटी इन आवर सिस्टम। तो नीड हो गया, दूसरा अपॉर्चुनिटी, आपको अब समझ में आ गया होगा। सेकंड होता है, सेकंड नहीं, थर्ड होता है क्या कि रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि एक, मतलब ऐसा आप सोचिए ना, ऐसा हम सोच सकते हैं कि एक बार चोरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का जो है वो थॉट उसके दिमाग में आता है कि सब तो करता है, हम भी कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक होता है ना, ठीक है, कि ये कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, या हम ये किया तो है, ये भी तो एक बार चोरी किया है, तो हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मीनिंग देयर बाय the attitude of the fraudster to rationalize his fraudulent activity and justify himself stating everyone commits a mistake, so what if I do add one, मतलब सब तो मिस्टेक कर ही रहे हैं, यदि एक और हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो फ्रॉड ट्रायंगल है उसे आपने याद रखना है, नीड, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन, तीनों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में जो है वो बस इतना ही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है या उससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो इसे आप एक दो बार और पढ़ेंगे तो शायद आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो अगेन आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु इज़ वाचिंग माय चैनल दैट इफ़ यू थिंक कि कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल ओवर योर सोशल मीडिया, वट एवर यू यूज़, फेसबुक चाहे यूज़ करते हो या इंस्टा, कुछ भी आप यूज़ करते हो वहाँ आप इसे करें, ठीक है। और इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, okay. And Geeky Banker app is also there our Play Store. Soon I will upload 20 or 25 mock test in IT security. सिर्फ आप सिर्फ मॉक टेस्ट कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम आराम से जो है वो पास कर जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अगेन, थैंक यू।